I'm audible? Is this sound clear to you? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Class, we were discussing about, if you remember, HDN, okay? Hemolytic disease of newborn. कल ही किया था हमने और मैंने कहा था थोड़ा सा रीड कीजिए, correct? And we will be going into the detail of that. So we saw the blood groups, correct? We saw the blood group is controlled by which genes, correct? We named it as the I gene, IA, IBN, small I for O. Then we looked into the RH factor and we are discussing the RH incompatibility. Incompatibility मतलब problems. क्या problem हो सकती है? तो one तो is straight that you cannot give a RH positive blood to a RH negative person. Okay, positive को negative हम नहीं दे सकते. लेकिन जब हम incompatibility बोलते हैं तो we have otherwise no problem, but only if mother is RH negative, then we were supposed to be careful and we are discussing the hemolytic disease of newborn. उसका एक नाम था erythroblastosis fetalis, correct? This was the name, but I'm going there and I'm going to show you what it is. Okay, किसी का audio on है? If that can be put off. Okay, class. So let's begin with that, and that will end with the immunity part, and we will move into the disease part, various types of disorders. Fine. Just a minute, class. Okay, we were quite ahead with this. Just a minute. Yeah, the RH factor, we discussed the rhesus monkey, correct? And this was where we stopped. I just gave you a brief explanation, very, very brief. But what I told you to by heart was that RH incompatibility, मतलब compatible नहीं है, suitable नहीं है. कब एक ही केस हो सकता है वहां पे, where mother is RH negative. वो नेगेटिव और पॉजिटिव में. हाँ जी, and the baby is positive. उल्टा नहीं जाना. You cannot say mother is positive and baby is negative. उसमें प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ एक ही incompatibility है. Mother is negative and the child is positive. Fine, and we are going in detail of that. Now see what the textbook say. This RH, that is the D antigen, gives rise to a very strong, look at the word, strong immunogenic response when it is put into RH negative. Positive चीज अगर हमने negative में डाली तो immune system of that negative person generates a very strong response to fight. It counts the positive as antigen कि ये मेरे body में कोई antigen है, वो उसको non identify करता है. What it counts it as harmful. ठीक है? Now very important is I will be reading all your chats in 20 minutes. Okay, नहीं तो बहुत ज्यादा ब्रेक आ जाता है लेक्चर. ठीक है, मैं 20 मिनट्स के बाद चैट रीड करूंगी या एक होल कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद रीड करूंगी. ठीक है, आप डालते जाइए, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, सो डोंट फील आई एम नॉट आंसरिंग. ये टॉपिक जैसे ही खत्म होता है फिर मैं चैट रीड करूंगी. ठीक है, ओके. सो हियर द पर्सन इज RH नेगेटिव और हमने उसको पॉजिटिव ब्लड दे दिया, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कि this is wrong, this is what my body don't identify. Fine. So while giving blood, RH blood group has to be checked. ये तो है ही. अब दूसरा प्रॉब्लम क्या था जिससे हम डील कर रहे हैं? HDN, hemolytic disease of newborn, which is also called as erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Erythro is your RBC जो ब्लास्ट मतलब बर्स्ट हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे. फीटालिस, फीटस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो वो एम्ब्रियो के या न्यूबॉर्न बेबी के आरबीसी क्या हो रहे? बर्स्ट हो रहे. दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. लुक एट द वर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, RBC of the fetus. Fetus is the baby which is in the body of mother,
एंड आफ्टर बर्थ भी, अगर आफ्टर बर्थ हो रहा है तो वी कॉल इट एज hemolytic disease of newborn. But class, please see the last line. It can happen only when mother is Rh negative and the baby is Rh positive. There is no other possibility for this. Okay, it can happen to the child if the child is negative, but the mother on whose body the baby is developing is positive. Is that clear? ये लाइन क्लियर है? ओके, वी मूव अहेड विद इट. लेट्स लुक हियर. द RH पॉजिटिव आरबीसी, ये मैंने आपको फिगर के साथ ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था. अब रीड कर रहे, टेक्सुअल वर्ड देखिए. द RH पॉजिटिव आरबीसीज from the developing baby may enter, it is always a may, okay, may not enter the mother's circulatory system. Why? Because mother's circulatory system is very closely connected with the child to provide the child food, to provide the child immunity, to provide the child oxygen, to remove the waste from the child. So all they are very totally connected through a tissue called placenta. मदर और चाइल्ड के बीच में जो टिश्यू है उसका नाम क्या है? प्लासेंटा. यू मस्ट बी नोइंग अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड, करेक्ट. ये बेबी है और उसका एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो मदर के बॉडी को कनेक्टेड है, बराबर है. और यहाँ पे प्लासेंटा होता है, टिश्यू. ओके, दिस इज प्लासेंटा. So here somewhere the circulatory system is in very close contact, and that's why there is a good chance that वो RH positive RBC किसके पास है? वो बेबी के पास. मदर तो नेगेटिव है. that may come in touch with the mother, and so mother will produce antibody for RH. Okay, it will produce antibody against it. As a result, वो बेबी तो बॉर्न हो गया. सब्सिक्वेंट, उसके बाद वाले RH पॉजिटिव जो बेबीज होंगे, अगर होंगे तो, करेक्ट, तो उनके लिए ऑलरेडी RH एंटीबॉडी रेडी है. मतलब मदर को ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हो गया है. तो सेकेंड बेबी के टाइम इट विल रिएक्ट मोर फास्टर एंड शी विल प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एंटीबॉडी, एंड प्रोबेबली दैट सेकेंड चाइल्ड will die and or suffer from hemolytic disease of newborn. So then what should we do? We should not marry with RH negative female. Can we say that? कि RH negative है person female, तो फिर उस और मैं RH positive हूँ तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Is it? Should we take that care of that? Is that the criteria of dealing? No. Class, we are science people. We believe in technology. We will work. So science has worked, and what it has done, after the birth of the child, we check the blood group of the child. If the baby is RH positive, but the mother is negative, correct? Mother तो हमको पहले से पता है, but baby का blood group कैसे पता चलेगा? Only after birth. You cannot find it before birth. Okay, you cannot. So you have to wait. So after the baby is born, we check the baby. If the baby is RH positive, we give the mother a injection of RH negative के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी दी, करेक्ट, उसके अगेंस्ट. तो वो जो एंटीबॉडी मदर की बॉडी बना रही है वो हमारे इंजेक्शन से क्या हो जाएगी? बोलो वर्ड, न्यूट्रलाइज. मदर ने एंटीबॉडी बनाई बिकॉज द बेबी वाज पॉजिटिव. ठीक है. नाउ वी आर गिविंग एन एंटी-डी. इट इज कॉल्ड एंटी-डी इंजेक्शन. इट इज गिवन विद RH एंटीबॉडी, ओके, अपोजिट. और ये एंटीबॉडी हो जाएगा न्यूट्रलाइज. तो मदर की बॉडी कैसी हो जाएगी? पहले जैसी. तो जो सेकेंड चाइल्ड है उसको कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? लाइक फर्स्ट चाइल्ड. वो जो एक्सपीरियंस था. हेलो, बोलो. मॉम एंड बेबी दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव तो क्या होगा? एक मिनट रिपीट करो. मॉम एंड बेबी दोनों पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा उसमें? नहीं,
तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए। मदर, मैं बोलती हूँ, मदर पॉजिटिव है, बेबी पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मदर नेगेटिव है, बेबी नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही केस में प्रॉब्लम है, मदर नेगेटिव और बेबी पॉजिटिव, और किसी भी केस में प्रॉब्लम नहीं। यू क्लियर? लर्न दैट लाइन बाय हार्ट। मैंने एक लाइन पे मार्क किया, बोलो। इट अकर्स व्हेन देयर इज RH नेगेटिव, मदर, बेबी नहीं, मदर, एंड द बेबी इज पॉजिटिव। बेबी नेगेटिव है, मदर पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और किसी भी केस में प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? आर वी क्लियर विद दिस? इज योर डाउट क्लियर और इट वाज समथिंग एल्स? क्लियर हुआ? ओके, इज इट अभिषेक स्पीकिंग? ओके, ठीक, फाइन, ओके, या। सो नाउ व्हाट हैपेंस, हमने मदर को क्या ट्रीटमेंट दिया? Class, okay, let's look at the factual information. See, I am A blood group and I'm negative. Okay, this is the real case I'm talking about. Okay, and my first child positive. So what was, I had second child, I had third child also. So now, how my second and third child are surviving? Because as soon as my first child was born, what was checked? The blood group. So the baby was positive. ठीक है? Now we were expecting कि baby positive है, correct? But check होने के बाद ही immediately मुझे क्या दिया गया? एक injection दिया, उसका नाम है NTD. What is that injection called? NTD, which is against the RH antibody. So whatever antibody my body had made, वो क्या हो गया? Neutralize. So now my second child is there. That second child को I will be treating like first, क्योंकि मेरे पास तो एंटीबॉडी नहीं है ना। फिर वो चाइल्ड बॉर्न हो गया, चेक किया, भाई वो भी पॉजिटिव है, तो फिर क्या किया? फिर से मुझे एंटीडी दिया, करेक्ट? माय थर्ड चाइल्ड इज आल्सो पॉजिटिव, सो आई हैड टू टेक एंटीडी. इट इज नॉट एन ऑप्शनल, इट इज नॉट ऑप्शनल. आप ऐसे नहीं बोल सकते डॉक्टर आई एम गोइंग टू हैव ओनली वन चाइल्ड, आई विल नॉट हैव माय सेकंड चाइल्ड. आप ऐसे बोल के उससे हट नहीं सकते हो, वो रूल है. तो वो रूल कैसे अप्लाई होगा? पहले जैसे ही फीमेल इज having any baby development, that is pregnancy, we will check the blood group of female. If she is negative, immediately we have to check the blood group of the father. If father is positive, if, it is always a if there, okay? So then we note down father positive, mother negative, और वहां पे एक नोट आ जाता है आपके पूरे उसके ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर, कि प्लीज चेक द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड, एंड इफ इट इज पॉजिटिव गिव विच इंजेक्शन. इंजेक्शन का नाम बोलो, NTD. तो आप सेकेंड चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर लेते हो, और एक चाइल्ड है आप उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो. बट आफ्टर एवरी बर्थ मदर विल हैव टू टेक विच इंजेक्शन? NTD, और यू कॉल इट एज NTRH. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो साइंस ने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. पर क्लास, अगर मैं डॉक्टर के पास पहुंची ही नहीं, कैन आई से विलेजेस में ये हो सकता है? यस. देखो क्लास, यू आर लिविंग इन अ सिटी, पीपल आर अलर्ट, ओके, दे आर वरीड अबाउट द बेबी विच इज डेवलपिंग, एंड दे ग्रेट केयर, बहुत सारी सोनोग्राफी होती है, बहुत कुछ चेक होता है, करेक्ट? बहुत बार विलेजेस में ये फैसिलिटीज नहीं है, और ये चेकिंग करवाना उन्हें जरूरी भी नहीं लगता. सो इट मे हैपन that the mother is negative, fine, but she doesn't know. She delivers a baby who is positive and fine, correct? She doesn't know. Now every second child, the next child dies, they don't know why. Next child dies, they don't know why, because they never got it checked. बहुत बार villages में बेबी घर में भी डिलीवर होते हैं, बराबर है, करेक्ट? Isn't it? Yes. See क्लास, एक याद रखो, प्रेगनेंसी इज नॉट ए डिजीज. तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, जाते हैं बिकॉज आई एम टेलिंग यू वी आर इन सिटीज एंड वी टेक केयर, वी आर एजुकेटेड, करेक्ट? लेकिन हो सकता है कि आदित्य, क्या हुआ? आदित्य या आदिति, कुछ प्रॉब्लम है? ओके, एनीवे, सो व्हाट कैन हैपन? दिस लेक्चर इज ऑफ 1 hour. आई एम वेरी श्योर आई एम टॉलरेबल फॉर 1 hour. ओके, 1 घंटे के लिए थोड़ा टॉलरेट करो, ओके? और टॉपिक इतना भी बोरिंग नहीं चल रहा है ना?
ठीक है, एनीवे आई डू अंडरस्टैंड हाँ सर, हाँ मैम। ओके, सो अंडरस्टैंड इट दिस वे कि बहुत जगह पे ये हो सकता है कि मदर को ही पता नहीं है कि वो नेगेटिव है, और फिर बेबी बॉर्न हुआ, व्हाई विल वी सिंपली चेक द ब्लड ग्रुप? कभी आपने सुना है न्यूबॉर्न बेबी का ब्लड ग्रुप चेक हो रहा है? नहीं होगा। तो हो सकता है वो पता ही ना चले, तब उस केसेस में ये हो जाता है कि बेबी की डेथ हो जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग इट? सो देन दैट इज अ प्रॉब्लम. So don't you think it is advisable that we all know our blood group with positive, negative? So if I am negative, I will be alert. Or if you come in contact with somebody negative, you can make them alert, correct? If our friends, family member में कोई negative है, मर गया especially, next. so we have to take great care. Are you understanding? Are you getting it? So there is a cure, there is a treatment ना, तो हम मदर को प्रोटेक्ट कर सकते. ये देखिए RH इनकम्पैटिबिलिटी, मदर कैसी है देखो क्लास, नेगेटिव, बेबी कैसा है, पॉजिटिव, बराबर है. पर आर दे इन टच? यस, दे आर वेरी क्लोजली इन टच. तो मदर ने देखो वो येलो कलर का स्क्वायर दिख रहा है, यस, देखो ये येलो कलर का, ये मदर ने एंटीबॉडी बना के भेज दिया बेबी कि यू आर पॉजिटिव, आई डोंट आइडेंटिफाई यू, you are a antigen, so this baby's RBC will start dying. Okay, are you अगर understanding? मैम वो मैम हाँ हाँ, उससे पहले आपने बोला था ना NTRH, हाँ NTHDN, सॉरी, हाँ, NTD, सही था। यस यस. हाँ, उसमें ये कैसे? अगर मदर को हमने एंटीडी दिया है, क्या दिया, एंटीडी का इंजेक्शन दिया हुआ पहले ही, ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी है ना, ये न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो ये है ही नहीं. तो इस बेबी को मदर आइडेंटिफाई एज अ एंटीजन कब करेगी? जब वो बॉर्न होगा. तो तब तक तो बेबी बॉर्न हो गया ना, तो वो सरवाइव करेगा. जैसे फर्स्ट बेबी बॉर्न हो गया, फर्स्ट सी क्लास, कैन यू सी द बेबी इज वेल डेवलप्ड, मतलब दिस इज हैपनिंग इन क्वाइट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, मींस अराउंड इन 8th and 9th मंथ. तो ये बेबी जब बॉर्न होगा तब मदर को पता चलेगा, पर तब तक तो बेबी इज आउट, करेक्ट. लेकिन अगर ये पहले से पता है तो फिर मदर एंटीबॉडी भेजना चालू कर देगी. दैट इज द प्रॉब्लम. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर हमने एंटीडी दिया तो ये एंटीबॉडी क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, वो नहीं है, तो फिर वो अंदर जाएगा ही नहीं. इज दैट क्लियर? दिस इज द सेकेंड चाइल्ड हु इज सफरिंग, ओके, नॉट द फर्स्ट. दिस इज द सेकेंड चाइल्ड हु इज इन ट्रबल, वही मदर का सेकेंड चाइल्ड. Is that clear? Yes, very clear. So we move ahead. यहाँ पे देखो, you can see an entire process. Erythroblastosis fetalis. यहाँ पे आपको मदर की आर्टरी दिख रही है, करेक्ट? Are you getting it? Fetal RH positive red blood cell enters the mother's circulation. दिख रहा है? फिर मदर क्या जनरेट कर रही है, एंटीबॉडी. ये देखो ये ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स है, वो एंटीबॉडी है, NTRH दिख रहा है, करेक्ट, क्योंकि बेबी ने इधर आरबीसी भेजा. ये देखो बेबी वेल डेवलप्ड है, मैंने कहा काफी वेल डेवलप्ड है, यानी जस्ट बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग बर्थ ये पॉसिबल है, करेक्ट. तुम्हारे क्या बना दिया, NTRH रेडी हो गया है. इज दैट क्लियर? लुक एट द नेक्स्ट फिगर हियर. ये कौन है, सेकेंड चाइल्ड है, ये वो बेबी नहीं है अभी, दिस वन इज द सेकेंड चाइल्ड, ठीक है. तो ये NTRH एंटीबॉडी उस सेकेंड चाइल्ड के बॉडी में जा रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू सफर, दिस चाइल्ड इज गोइंग टू सफर. आर यू गेटिंग इट? श्योर. और उसके रेड ब्लड सेल क्या हो रहा है, देखो रीड करो, कल ये वर्ड डिस्कस हुआ था, अग्लूटिनेशन, चिपक जाना, क्लॉट हो जाना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस इज नोन एज hemolytic disease of newborn. Hemolytic, breaking down. So who is breaking down? RBC, and it is a rapid breakdown. So the baby dies due to anemia, due to lack of oxygen, क्योंकि इसके RBCs break down. So this is overall view of hemolytic disease of newborn or erythroplastosis.
नाउ क्लास, आपको एक बात याद रखनी है, दिस इज नॉट देयर एज ए डायग्राम इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है? इट इज जस्ट अ पैराग्राफ, जो हमने रिटर्न में पैराग्राफ दिखाया था, ये टेक्सुअल वर्ड्स, ठीक है? और उसका कोई भी डायग्राम नहीं। सो डायग्राम मैंने इसलिए दी कि यू शुड अंडरस्टैंड। और किसी भी केस में ऐसा इनकम्पैटिबल प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है मदर पॉजिटिव बेबी नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। मदर नेगेटिव फादर नेगेटिव बेबी नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट? इट इज अ प्रॉब्लम ओनली व्हेन बेबी इज पॉजिटिव। हाँ, बेबी का ब्लड ग्रुप कब चेक हो रहा है? बर्थ के बाद। तो सपोज दैट बेबी इज नेगेटिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर यू गेटिंग इट? और वैसे भी क्लास, अगर वो पॉजिटिव है तो हम उस वक्त आप कुछ कर नहीं सकते हो इस बेबी के लिए अभी से। आर यू गेटिंग इट? अब बेबी डेवलपिंग इन मदर्स बॉडी, मदर का इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप इंजेक्शन यहाँ पे ले सकते हो आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, so that you can protect the second child. Is that clear? It is subsequent pregnancy, मतलब next baby, ठीक है? फर्स्ट वाला मोस्टली कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? बिकॉज इट इज वेरी लेटर स्टेज। ठीक है क्लास? यस। हाउ मेनी मार्क्स वी आर एक्सपेक्टिंग? 2 मार्क का शॉर्ट नोट होगा या तो एमसीक्यू होगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो ये RH ब्लड ग्रुप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। दिस इज here again, okay? And we move to the topic change, disease. I'll just read your chats before I enter. अगर हम लेट हुए और 8-9 मंथ पे मालूम पड़ा और अगर तभी हम एंटीडी देते हैं, नहीं, आप एंटीडी नहीं दे सकते क्लास। अगर बेबी आपके बॉडी में डेवलपिंग है, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड चाइल्ड। ये कौन है? मोहन। हाँ मोहन, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंड चाइल्ड में हमको मालूम पड़ा लेट, ओके। और आप एंटीडी देना चाहते हो? हाँ, दे सकते हैं आप एंटीडी। बेबी को बर्थ के बाद भी देते हैं। सपोज बेबी बॉर्न हो गया लेकिन वो सफर कर रहा है HDN से, तो भी उसको एंटीडी दिया जाता है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया जाता है। वी ट्राई टू सेव दैट चाइल्ड ऑल्सो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी एकदम छोटा होता है, उसका इम्यूनिटी लेवल और सब कुछ बहुत लो, तो काफी डिफिकल्ट। यस, आप दे सकते हैं, आप एंटीडी दे सकते, ठीक है? मतलब सेकेंड चाइल्ड के लिए आपको लेट मालूम पड़ा, यस आप एंटीडी दे सकते, बिल्कुल ठीक है। बट बाकी आप ऐसे कुछ मेगा चेंजेस नहीं ला सकते, जो होना है वो होगा ही, ओके? और उसके लिए टेंस नहीं होना, वी हैव टू टेक मेडिकल हेल्प, ठीक है? इज दैट क्लियर? आप फर्स्ट चाइल्ड के लिए पहले से एंटीडी नहीं ले सकते। एम आई क्लियर? आप सोचोगे मैं RH नेगेटिव हूं तो मेरा फर्स्ट बेबी बॉर्न होने वाला, उसके पहले एंटीडी ले लूं, नहीं, वो आप नहीं करते, उसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है? बिकॉज मेरे अंदर एंटी RH तब तक है ही नहीं, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, सेकेंड के लिए आप कर सकते, ठीक है? ओनली RH लाइक एंटीबॉडी का इंजेक्शन इज कॉस्टिंग अराउंड 5000, ओके? So that you have to take, doctor is not going to give you any options, so that you have to spend, but now that is required, ठीक है? Is that clear? It is like a treatment, it is like saving, ठीक है? Okay? मैम हाँ बोलो। 100% रहता है श्योर क्या कि ठीक हो जाएगा? Yeah, see I told you, I myself for example, I have 3 kids and I have taken NTD. ठीक हो जाएगा मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक होने की जरूरत ही नहीं है ना। एंटीडी ले लिया तो सेकेंड चाइल्ड को प्रॉब्लम ही नहीं होगा, सेकेंड चाइल्ड विल बी ट्रीटेड बाय द बॉडी एज फर्स्ट चाइल्ड, गेटिंग इट? हम वो रिएक्शन होने ही नहीं दे रहे ना, हम बॉडी को, बॉडी ने जो लर्न किया है ना उसको हम न्यूट्रलाइज कर दे रहे, तो बॉडी फिर से भूल गई। आर यू गेटिंग इट? बॉडी ने एक एंटीबॉडी बनाया, हमने वो एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज कर दी, तो बॉडी को आप वो एंटीबॉडी बनाने नहीं आता, तो फर्स्ट चाइल्ड भी बॉडी के लिए क्या रहेगा? एकदम सेम, तो सेम ट्रीटमेंट। आर यू गेटिंग इट? वी आर नॉट प्लानिंग ऑफ ट्रीटिंग द चाइल्ड, वी आर प्लानिंग ऑफ अवॉइडिंग दैट सर्कमस्टेंस, ठीक है? इट्स लाइक अ वैक्सीन जैसा, आप पहले लेते हो ना, तो सेकेंड चाइल्ड के पहले ही लेना, वो बेटर रहेगा, गेटिंग इट?
एंड इट इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्शन क्लास। बट कब अगर आपको पता है, आपको नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जो कहाँ हो सकता है, अनएडुकेटेड पॉपुलेशन में हो सकता है, या जिन्हें कोई सोर्स ही नहीं है, मेडिकल हेल्प ही नहीं है। बहुत सारे ट्राइबल जोन है ना, बहुत सारे लोग एकदम पुअर हैं, वो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड चाइल्ड नेगेटिव हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एंटीबॉडी नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, चांस बहुत कम है, वो नेगेटिव होने का चांस बहुत कम है। ओके, बिकॉज पॉजिटिव इज अ डोमिनेंट ग्रुप। ओके, पॉजिटिव इज अ वेरी डोमिनेंट ग्रुप, तो थोड़ा मुश्किल है। सी क्लास कहीं ना कहीं पे यहाँ पे फादर पॉजिटिव है ना, इसीलिए ये कंडीशन आ रही है। ठीक है, कीप इन माइंड वो पॉजिटिव ग्रुप फादर से आ रहा है, मदर तो नेगेटिव, तो वो डोमिनेंट होना मतलब व्हाट यू से, इट्स लाइक अ रूल, ऑलमोस्ट वो पॉजिटिव ही होगा। रेयर केस होगा कि चाइल्ड नेगेटिव। ठीक है, बट फिर भी वी हैव टू चेक द ब्लड ग्रुप एंड देन ओनली इट कैन बी डन। फाइन, वी मूव अहेड। ओके, वी आर मूविंग अहेड टू completely new heading, disease. ठीक है, now what is a disease? Disease is a condition, it's a condition where body is not comfortable, you are dis-ease, मतलब आपकी जो easy condition थी वो बंद हो गई, you are uncomfortable. ओके, ease मतलब comfort, डिसीज मतलब डिस्कम्फर्ट, तो बॉडी को कुछ ना कुछ हो गया। ठीक है, लेकिन कैन आई से क्लास मेरा सर दुख रहा है तो मुझे कोई बीमारी है? कैन आई से दैट? नो। ओके, बट कैन आई से हेडेक इज अ सिम्पटम ऑफ डिजीज? डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, सो हेडेक इज अ सिम्पटम। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू कैन नॉट राइट हेडेक इज अ डिजीज, क्योंकि headache is a symptom of disease, but कुछ ना कुछ तो तकलीफ है, तभी कुछ प्रॉब्लम है। So we define disease as severe degree of disturbance, okay, or derangement means moving away from an arranged order. बॉडी का एक सिस्टम अरेंज चल रहा है, उसमें से डिरेंज हो गए, अलग हो गए, कुछ डिफरेंट होने लग गया है, which can be caused due to infection, due to some wrong diet, or heredity, it may be genetic, correct? So we call it as disease. अगर आप बोलोगे मीन्स accidents, so then accident is not a disease. मैं गिर गई, मुझे कुछ चोट लग गई, तो वो disease नहीं है, surely body is suffering, but we don't call it as a disease. Are you understanding? वो एक अलग चीज है, otherwise इसमें accident नहीं लिखा है ना, so disease is caused due to infection, या आपने कुछ गलत खा लिया है, या आपके जीन्स में कोई प्रॉब्लम है which is showing you that problem, correct? So it is severe degree of disturbance or derangement from functioning of one or more organs of the body. ठीक है, now let's look at who causes disease. Any organism causing disease is known as pathogen. Who are pathogens? Pathogens are disease causing organisms. Who are pathogens? Corona is a pathogen, na? Coronavirus pathogen, correct? Can I say, let's give me another example. There's a bacteria which causes TB, so we will call that bacteria as pathogen, correct? There is a typical worm in your body which is causing disease, then that worm is a pathogen. So what are pathogens? Disease causing organism. ठीक है, कभी कभी वो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में किसी के थ्रू आते हैं, तो किसी के थ्रू, वो थ्रू वाले को क्या बोलते हैं? वेक्टर। मलेरिया कैसे होता है? कैसे होता है? मच्छर काटने से। तो क्या मच्छर पैथोजन है? नहीं, नहीं है ना, बट मच्छर क्या है? वेक्टर। बिल्कुल, वेक्टर, करेक्ट ना? तो पैथोजन फॉर मलेरिया दूसरा है,
दैट इज अ प्रोटिस्टा, ओके, प्लाज्मोडियम है उसका नाम। तो वो प्रोटिस्टा को लेकिन मेरे पास कौन लाया, वो मच्छर, करेक्ट। सो मच्छर इज एक्टिंग एज अ वेक्टर, करेक्ट। सपोज मुझे जॉन्डिस हो गया जो गंदे पानी से हो रहा है, तो वो पानी क्या है, वो पानी क्या है, नहीं नहीं, अब हम चेंज पे आ गए इसलिए मैंने वो बोला वर्ड, दैट इज कॉल्ड अ व्हीकल। नॉन लिविंग चीज को बोलते हैं व्हीकल और लिविंग को क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है क्लास, याद रहेगा ना। तो पानी, हवा, उससे भी डिजीज स्प्रेड होती है। वी नो सो मेनी डिजीजेस व्हिच कम्स टू अस फ्रॉम एयर और थ्रू Red eye. वाटर और थ्रू फूड, बराबर है। तो Red eye. उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, व्हीकल। और ये जो है वो क्या है, वेक्टर, है ना। डेंगू कैसे हो रहा है, वायरस से, लेकिन उसको लाता कौन है, मॉस्किटो। सो इट इज करेक्ट, सो इट इज अ वेक्टर, करेक्ट। तो कुछ डिजीजेस हमारे पास तब तक नहीं आएंगी जब तक कि वेक्टर नहीं, ठीक है। सो दैट इज वन मोर टर्म, ये टर्म बार बार चैप्टर में आने वाले, दैट्स व्हाई। इंक्यूबेशन पीरियड, सपोज डेंगू का वायरस मेरे बॉडी में आ गया, ठीक है। अब मुझे कब पता चलेगा, जब मेरे प्लेटलेट नंबर कम होने लग गए, मुझे बुखार आने लग गया है, करेक्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे बुखार आ रहा है तो मुझे फिर कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है। तो सपोज वायरस अंदर गया है फर्स्ट को, मैं डेट बोल रही हूँ, ओके, फर्स्ट, मुझे बुखार आया है 10th को, तो ये 10 दिन क्या चल रहा था, कुछ नहीं। तो ये 10 दिन को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तब तक वायरस was checking my body, judging my body, adjusting with my body, and then it becomes active. So the time interval from the time invasion means the pathogen comes to the body and till the time you get the symptoms, जब तक आपको पता चलता है। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है 1 ही दिन का हो, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, हो सकता है 6 महीने का हो, कि मुझे मच्छर ने काटा था जनवरी में और बुखार आया है जून में। मच्छर ने कभी काटा था, जनवरी में, तब से वो पैथोजन मेरे बॉडी में है, बट उसका इफेक्ट कब हो रहा है, जून में। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कभी रियल में होता है मैम, हाँ रियल इतना डिफरेंस। हाँ बिल्कुल, यू आर सेइंग 6 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड होता है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, डिजीजेस में है, लेकिन वो फिक्स है, मतलब हर डिजीज में नहीं, हर डिजीज का एक टाइम पीरियड है और इंक्यूबेशन पीरियड, ओके। जैसे मलेरिया है तो 4 दिन से लेके 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड, कभी कभी 4 दिन में इफेक्ट दिखाता है, कभी 10 दिन में दिखाता है, ठीक है। पर जैसे आप और एक डिजीज करोगे, फिलेरिया, आपके सिलेबस में फिलेरिया आपको 6 से 8 महीना लगा सकता है। 6 महीने पहले एक मच्छर ने काटा और आपको 6 महीने के बाद पता चला, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होता है, ओके। सो इंक्यूबेशन पीरियड इज the time at which the pathogen has entered your body, but when you come to know, जब कुछ खांसी होगी, बुखार आएगा, पेन होगा, कुछ तो होगा ना, वॉमिट malaria, plasmodium, which is causing malaria, isn't it? Can you see that? So you can have 2 types of parasite which can cause problem to you, ecto या तो endo, ठीक है? Is that clear? Fine. Now disease can be divided into broad category. एक जो by birth है और दूसरा I will just go there जो आफ्टर बर्थ, ठीक है। नेम द डिजीज, congenital, learn this word class, congenital means by birth, name this one, acquired, बाद में, बॉर्न होने के बाद मुझे कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको कौन सी डिजीज बोलते हैं, acquired. So one is by birth. So first we are looking at the by birth. It is present by birth. It is known as congenital.
इट इज जनरली ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम, मेरे जीन्स में ही वो प्रॉब्लम है, सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बॉडी के डेवलपमेंट में ऐसा कुछ हो गया है, वो एम्ब्रियो ऐसा डेवलप हो गया कि देयर इज अ डिसऑर्डर। मोस्टली इट इज परमानेंट। मोस्टली ये जो बॉर्न डिजीजेस होती है वो क्या होती है? परमानेंट। मोस्टली दे आर इनक्योरेबल, बॉडी उनको क्योर नहीं कर पाती, ठीक है, बिकॉज वी आर बॉर्न विद अ डिफेक्ट, ठीक है। बट श्योरली यू कैन सी मॉडर्न साइंस, बायोटेक्नोलॉजी ट्राई कर रही है जीन थेरेपी से कुछ कुछ डिजीजेस को क्योर करने के लिए। आई जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल, अगर मेरे जीन्स में ही ड्रॉबैक है तो फिर वो तो चेंज नहीं हो सकता ना आफ्टर, करेक्ट। मॉडर्न बायोटेक में भी अभी तक क्योर नहीं है, बट वी आर ट्राइंग। इसीलिए देखो क्या लिखा है, some inborn disease may get some treatment, may get some enzyme। मेरी बॉडी एक एंजाइम नहीं बना रही, ठीक है, तो हम चलो उसको बाहर से बना के आपको दे देते, तो आपको ट्रीटमेंट मिल गया ना। आर यू गेटिंग इट? तो वैसा हो सकता है, बट कैन यू से इट इज क्योरेबल? टिल नाउ नो। आगे yes we are trying, it may become curable। are you understanding? get it? sure this much? आपने एक डिजीज पढ़ी होगी कलर ब्लाइंड। मैम हाँ बोलो। अगर नहीं क्योर हुआ तो कुछ नहीं, पैसा बर्बाद। फिर उसके साथ रहना है। वो क्लास जो हमारे बर्थ से डिसऑर्डर है हम उसके साथ ग्रो अप होते हैं, उसके साथ रहना सीखते हैं। अगर ज्यादा सफरिंग है तो फिर पर्सन सफर करता है। we have to learn to adapt to with that disease or take medicines and live with that disease। अगर वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, पर्सन विल डाई अर्ली। कैसा हो सकता है ना? कुछ नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग इट? इट्स नथिंग कैन बी डन टिल नाउ। द टेक्निक इज नॉट सो वेल डेवलप्ड। आगे श्योरली वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ रिसर्च, हो सकता है ठीक हो जाए। देखो क्लास, एक डिजीज आपने पढ़ी होगी कलर ब्लाइंडनेस, एम आई राइट? पढ़ा ना कलर ब्लाइंडनेस? या यस हो गया ना कलर ब्लाइंडनेस, एम आई राइट? करेक्ट। इन योर दिस व्हाट इनहेरिटेंस, करेक्ट, उसमें कलर ब्लाइंडनेस किया, वो इनबॉर्न है। तो हम कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं कर सकते। उसके आई के कौन सेल में प्रॉब्लम है तो वो क्योर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो पर्सन कलर ब्लाइंडनेस के साथ जीना सीख जाता है। उसको रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखता, ग्रे दिखता है, तो ठीक है, उसको पता है ये ग्रे दिख रहा है तो या तो ये रेड है या तो ग्रीन है या तो ग्रे है, और उसमें कुछ कर नहीं सकते। करेक्ट, फाइन, गेटिंग इट? बट अगर वहीं पे वो डिजीज हीमोफीलिया है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, करेक्ट। उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो उसके साथ जीना सीखना बहुत मुश्किल है ना, करेक्टली। टू लिव विद दैट डिफिकल्ट डिजीज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कलर ब्लाइंडनेस you can survive, but with hemophilia to survive is quite difficult। are you getting it? but yeah, there is no cure, nothing, it is not something new discovery। diseases कब से हैं in this world, कोई नया नहीं है उसमें, पर है तो है, nothing can be done about it at least till now। futuristically surely we are trying a lot, okay? ठीक है। अब acquired disease जो हमको बर्थ के बाद होती, ठीक है, तो जो बर्थ के बाद होती है उसमें सीधा दो कैटेगरीज आएंगी। कम्युनिकेबल, जो आपको आप दूसरे को भी देने वाले हो, इनफेक्शियस, बराबर है। दूसरी नॉन कम्युनिकेबल, जो आपको है पर दूसरे को नहीं हो सकती, करेक्ट। तो एक बहुत सिंपल चीज यहाँ पे, आई शो यू अ इमेज। या देखो, एक साइड देखो आपको कोल्ड दिख रहा है, फ्लू दिख रहा है, मीजल्स दिख रहा है। क्या ये एक से दूसरे को हो सकता है? सर्दी, करेक्ट, फ्लू, मीजल्स भी होता है, करेक्ट। दूसरे साइड देखिए, कैंसर दूसरे को हो जाएगा? नो नहीं होगा। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट में स्ट्रोक आता है, हार्ट फेलियर नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी को क्लास किसी का ऑडियो हाँ नहीं, मैं अकेले क्लास ऑडियो डन मैम। हाँ, ये
ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? कैंसर कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? हाँ वरुण, पूरा एक टॉपिक है। कैंसर एक पूरा टॉपिक है डिटेल में, सो व्हेन वी विल गो देयर तब डिस्कस करते, क्योंकि नहीं तो उसमें बहुत टाइम चला जाए। अभी आगे थोड़ा आगे जाके कैंसर आने वाला, ठीक है? बहुत डिटेल में, डोंट, तो तभी हम पूरा देख लेंगे, कॉजेज, इफेक्ट, एवरीथिंग, ठीक है? नाउ क्लास, डायबिटीज एक कॉमन डिजीज है, लेकिन मुझे है तो आपको हो सकती है क्या? नहीं, मेरी वजह से आपको नहीं होगी। सो इट कम्स अंडर नॉन कम्युनिकेबल, करेक्ट? यू कैन सी दैट communicable, give me another word, infectious. Corona is a infectious disease. We are facing इतना, इसलिए तो इतना डर लग रहा है ना, हम सब डरे हुए, करेक्ट, कि को नहीं हो जाए, बराबर है? It is transmitted from one person to another. चिकन पॉक्स, जैसे ही बच्चे को चिकन पॉक्स होता है, स्कूल क्या बोलता है? 15 दिन स्कूल आने का नहीं, नहीं तो क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को हो जाता है, फिर सबको प्रॉब्लम्स होती है, करेक्ट? सो सर्दी, खांसी, बहुत सारी डिजीजेस डायरेक्टली स्प्रेड होती हैं। टाइफॉइड, जॉन्डिस, यस, दे आर ऑल कम्युनिकेबल, दे पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब आप मेरे टच में आए, और इनडायरेक्टली मतलब पानी से, हवा से, कई ऑब्जेक्ट से जो मैंने टच किया और आपने टच किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So directly or indirectly they can be transmitted, and mostly they are caused by some pathogen. उनका कोई या कोई infectious agent होगा, ठीक है? जैसे डायबिटीज, उसका कोई एजेंट है क्या? नहीं, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ये सारी डिजीजेस में जनरली देयर इज अ पैथोजन विच इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है? अब एक्वायर में देखिए, यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल में व्हाट इज हैपनिंग? They cannot be transferred, ठीक है? कैंसर, मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मेरी बोन बहुत कमजोर हो गई है, करेक्ट? तो क्या होगा? दूसरे को भी होगी? नहीं, वो तो मेरा डाइट प्रॉब्लम है ना, मैं विटामिन डी नहीं खाऊंगी तो मुझे डेफिशिएंसी होगी। कैंसर, आप देखोगे लोग कैंसर पेशेंट को हेल्प करते हैं क्योंकि वो इन्फेक्शियस नहीं है, पर वहीं पे जो इन्फेक्शियस डिजीज है सब उससे दूर रहते, जल्दी हेल्प ही नहीं करते, करेक्ट? सो डिजीज विच कैन स्प्रेड, उसमें लोग क्या करने लगते हैं? दूर रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, करेक्ट? दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ, इजंट इट? बट अगर इन्फेक्शियस नहीं है तो श्योरली मैम, दैट इज द प्रॉब्लम, करेक्ट? पोलियो और टीबी आर इन्फेक्शियस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। टीबी खांसी है, सीवियर फॉर्म में लंग्स का इन्फेक्शन है, और अगर टीबी है तो आपको ऑलवेज कॉफिंग और उसके लिए अपना माउथ कवर करना होता है, और 2 साल का ट्रीटमेंट होता है। 2 साल पूरी फैमिली को, क्योंकि फैमिली मेंबर्स तो आपको छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है? दूसरों से तो आप दूर रह सकते, तो पूरी फैमिली को आपसे बहुत टेक केयर करना पड़ता है, यस। अच्छा, लेकिन ट्रीटेबल, तो मैम, और पोलियो ट्रीटेबल तो नहीं है, क्योंकि पोलियो हो गया तो हो गया, लेकिन उसका वैक्सीन, तो वैक्सीन लेना चाहिए एकदम इमीडिएटली। हाँ, इन्फेक्शियस, बिल्कुल। तो जो टीवी वाला जो इंसान रहेगा इज लाइक सेम लाइक अ कोविड-19? Yes, works but like yeah, works like that, but TB is not highly infectious. There are infection के range होते हैं बेटा। जैसे मैंने स्नीज किया और आपको सर्दी हो गई, तो ये कोल्ड हाईली इन्फेक्शियस है। कोविड-19 वैसा चल रहा है, टीबी ऐसा नहीं। आप मेरे बहुत क्लोज कांटेक्ट में आए, आप मेरे साथ बहुत टाइम रहते हो, दिन भर हम लोग साथ में काम करते हैं सपोज, करेक्ट? तो चांस, और मैं बहुत कॉफ कर रही हूँ, अपना माउथ भी कवर नहीं करती, तो आपको चांस है इन्फेक्शन होने का, ठीक है? आई विल से टीबी इज नॉट हाईली इन्फेक्शियस लाइक कोरोना। कोरोना इज हाईली इन्फेक्शियस, आर यू गेटिंग इट? आपको हो सकता है पता भी नहीं चले और आपके पास आ जाए, आप सोचोगे मेरे को कौन मिला था कोविड वाला, ऐसा हो सकता है। लेकिन टीबी वाला ऐसा नहीं होगा। टीबी आपको कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन आएगा, वो भी मे बी यू विजिटेड अ हॉस्पिटल और अ टीबी सेंटर, या फैमिली में किसी को है, या आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड को है, तो ही वो आपके पास आ सकता है, इतना आराम से नहीं आएगा, ठीक है? सो देयर इज अ डिफरेंस। जैसे चिकन पॉक्स बहुत जल्दी स्प्रेड होता है ना, हाईली इन्फेक्शियस में आता है, आर यू गेटिंग इट? बट कुछ चीजें ऐसी नहीं, उनको टाइम है, मतलब
इट डिपेंड्स, और बॉडी फाइट भी कर सकती है ना। जैसे टाइफॉइड गंदे पानी से होता है, आपने कहीं पे कंटेमिनेटेड पानी पी लिया, कि बॉडी ने फाइट कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो इन्फेक्शन हो गया। इट्स लाइक दैट, गेटिंग इट? सो सम आर हाईली, सम आर नॉट हाईली इन्फेक्शियस, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस, ओके। क्लासिफिकेशन कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड, ये इसका रिकैप है। बाय बर्थ है, ज्यादातर जेनेटिक और क्रोमोसोमल है, या तो डेवलपमेंटल एरर है, देखो नीचे लिखा है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? एक्वायर्ड क्यों होती है? जो हमको लाइफ लॉन्ग में होती रहती है, बॉर्न होने के बाद हो रही है, करेक्ट? सर्दी, खांसी, टीबी, टाइफॉइड, मलेरिया, जॉन्डिस, ये सब होता है, ठीक है? इज इट वेरी क्लियर? कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल का डिस्टिंग्विश, करेक्ट? ये डिस्टिंग्विश मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप एज होमवर्क करेंगे, थोड़ी मेहनत आप करेंगे, ठीक है? नाउ वी स्टार्ट विद अवर फर्स्ट डिजीज फॉर टुडे, और अब ऐसे हम डिजीज में जाए, ठीक है? सो whenever a disease comes, how are you going to learn? Causes, effect, symptoms, control, how to stop it, and treatment. कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है? How to stop it, how to cure the person. So let's go to the first one, the most famous disease, malaria. Correct? Yes. क्लास, अभी बारिश आ गई है, पानी जमा होने लगेगा, पानी जमा होगा तो पानी के साथ हम किसको इनविटेशन देते हैं? मॉस्किटो को। स्टैग्नेंट वाटर में मॉस्किटो आएगा, मॉस्किटो ब्रीड होगा, और उसकी वजह से कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ सकता है? प्लाज्मोडियम। बट बाय एनी मॉस्किटो? नो, इट इज अ फिक्स ब्रीड। बोलो, एनोफिलिस मॉस्किटो, वो भी फिक्स है कि फीमेल, करेक्ट? Female Anopheles mosquito will pass which problem? Plasmodium, and Plasmodium is going to cause malaria. So tell me the positive agent, Plasmodium, ठीक है? Not mosquito. Who is the vector? Female Anopheles mosquito. Am I clear? Yes. जब हमने चेक किया तो पता चला, अरे ये प्लाज्मोडियम तो बहुत सारे टाइप्स के हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवाले, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो ये अलग अलग टाइप के प्लाज्मोडियम से, और इसमें से कोई भी हमारी बॉडी में आ सकता है, ठीक है? आई रिपीट, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवाले, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। नाउ क्लास मैंने रिपीट क्यों की? Any idea? Any guess? Yes. 2020 मार्च का क्वेश्चन है, 2020 मार्च, जो अभी एग्जाम हुआ, जिसका रिजल्ट आज आ चुका है, करेक्ट? सो दिस वाज द क्वेश्चन. व्हाट वाज द क्वेश्चन? नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया. तो व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट? प्लाज्मोडियम, ठीक है? यस, प्लाज्मोडियम. यस, प्लाज्मोडियम लिखने का बोर्ड ने हाफ मार्क दिया, क्योंकि उन्होंने बोला हमने 4 स्पीशीज मेंशन की है, तो बच्चे ने कम से कम एक तो लर्न करना चाहिए. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स लिख देता बच्चा, प्लाज्मोडियम मलेरिया लिख देता, ओवाले लिख देता, तो ये चारों नाम बुक में दिए हुए थे, ठीक है? तो प्लाज्मोडियम बच्चों ने लिखा, और 50% बच्चों ने लिखा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो उनको 0 मिल गया. गेटिंग इट? क्योंकि एज सून एज वी से मलेरिया, सबसे पहले ध्यान में कौन आता है? मच्छर. प्लाज्मोडियम नहीं आता ध्यान में, ठीक है? सो यू शुड नॉट हैव अ डाउट, यू शुड नो द पैथोजन इज प्लाज्मोडियम एंड वेक्टर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. और इस बार बोर्ड में प्लाज्मोडियम का टेबल भी दे रखा है, ये देखिए, ऐसा टेबल आपके बुक में भी. सी, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम कितने डेज? 9 से 14 दिन में, ये इंक्यूबेशन पीरियड देखें. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स 12 से 18 दिन, ओवाले 12 से 18, फिर से ये देखो लंबा चल रहा है मलेरिया 18 to 40 डेज. नोवालिस हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, यू मे गेट इट, नॉट अ प्रॉब्लम, ये न्यूली फाउंड है, करेक्ट? सो वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट, टेक्स्ट बुक में ऐसा टेबल दिया हुआ है.
सो दे एक्सपेक्ट यू टू लर्न द नेम. ठीक है, श्योरली अभी आए तो आपको आने का चांस कम है. नाउ क्लास ये देखिए, राइटिंग पार्ट एग्जैक्टली ऐसा दिया हुआ था. ठीक है, फिर बहुत बच्चों ने आंसर लिखा पी वाई वैक्स. कितना मार्क्स देने का? हाफ दिया. वो भी बहुत ज्यादा झगड़ा किया हमने बोर्ड से कि आपने क्यों पी वाई वैक्स लिखा. बच्चा भी बोर्ड वाज फोर्सिंग कि प्लाज्मोडियम आना ही चाहिए, बट वी सेड नो, इफ द टेक्स्ट बुक सेज पी वाई वैक्स तो वी विल गिव मार्क्स. तो फॉर्चुनेटली बच्चों को मार्क्स मिल गया, लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू लर्न एटलीस्ट 2 स्पीशीज. ठीक है, प्लीज लर्न एटलीस्ट 2 स्पीशीज. अब उसमें से सपोज आई एम हैविंग प्लाज्मोडियम ओवाले, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली if I am having falciparum, this is a very severe type of malaria. बहुत ज्यादा फीवर आता है and it may lead to death. डेथ भी हो सकती है. सो ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसमें हॉस्पिटलाइज होने बोल देते. सो इफ somebody has malaria, you must have seen ट्रीटमेंट घर पे ही होता है. करेक्ट, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट चलता रहे, 15 दिन 20 दिन बाद ठीक हो जाए. But if it is falciparum और ठीक नहीं हो रहा है, then doctor will advise hospitalization because falciparum can sometimes become very serious. It reaches the brain and it can lead to fever in the brain और उससे डेथ होने का चांस हाई हो जाए. Am I clear with this? Yes. So which is severe type of malaria? Caused by Plasmodium falciparum. Is that clear? Yes, श्योर. इतना वेरी क्लियर ना? ओके. मलेरिया में क्या क्या होता है आपको अच्छा, ये इससे अच्छा ये पहले देखिए. ये देखिए मलेरिया में क्या होता है. हमको 3 चीज बाय हार्ट करनी, कोल्ड, हॉट, स्वेटिंग, और खत्म हो गया मलेरिया. इतने में कोल्ड, वी फील वेरी कोल्ड. द प्रॉब्लम इज रिगर, ठंडी लगती है. पर्सन स्टार्ट शिवरिंग. Look at this word, shivers. Person is shivering. So severe ठंडी, बहुत ज्यादा, terrible. फिर high fever, hot. So temperature बढ़ने लगता है. Person gets severe fever. This may remain for few hours. Okay, वो बुखार चलता ही रहेगा. उसके बाद immediately person will sweat. पसीना आ गया, बुखार उतर गया, person एकदम नॉर्मल. बट ये क्या होगा, बार बार होगा, मतलब रोज ये हो रहा है. तो इसीलिए दैट इज नोन एज पीरियोडिक साइकिल. इट इज नोन एज साइक्लिक. देखो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, साइक्लिक. क्लासिकल टर्म्स ऑफ मलेरिया आर साइक्लिक. व्हाट हैपेंस, कोल्ड, फीवर, स्वेटिंग. फिर दूसरे दिन फिर से क्या होगा, कोल्ड, फीवर, स्वेटिंग, और यही चलता रहता है. सो डॉक्टर क्या बोलता है, कब से बुखार आ रहा है? अच्छा, कभी आता है? रोज दोपहर को आता है. अच्छा, तो ही इज ट्राइंग टू गेस डू यू हैव मलेरिया और समथिंग एल्स. तो इफ इट इज क्वाइट साइक्लिक, ही विल से डू अ ब्लड टेस्ट फॉर मलेरिया. उसको, डॉक्टर को भी तो पता चलना चाहिए कि फीवर कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने घंटों के लिए आ रहा है. देखिए यहाँ पे दिया अराउंड 4 to 6 hours हो सकता है. करेक्ट. एंड दिस कीप्स ऑन रीअकरिंग अगेन एंड अगेन. करेक्ट. देयर इज सडन शिवरिंग, high fever, sweating, shivering, high fever, sweating. This keeps on going. ठीक है. But along with that, और क्या हो सकता, ये मैंने आपको पहले बेसिक सिम्टम बता, ये तो होना ही. Along with that, look at person may feel है, बार बार सर दुख रहा है, बुखार आ रहा है, get checked. ठीक है. Person may feel very cold, हमने लिखा chills, sweating, पसीना आना, कभी कभी ड्राई कॉफ, खांसी हो सकती है. ठीक है. फीवर, वेरी टायर्डनेस, फटीग, एकदम थक जाता है बंदा. ठीक है. जॉइंट्स में पेन, बैक एक और जॉइंट्स में बहुत पेन हो सकता है. कभी कभी देयर इज स्वेलिंग इन दी स्प्लीन. स्प्लीन इज अ स्मॉल ऑर्गन विच हैज स्पेशल आरबीसीज एंड ब्लड. ओके. एंड स्टमक, कभी कभी आपको वॉमिटिंग हो सकती है और वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती, नॉजिया हो सकती. ठीक है. अब इसको टेक्सचुअली रीड कीजिए. यस, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया? लुक केयरफुली. इनिशियली फीवर, हेडेक, चिल्स, वो रिपीट हो गया. ओके.
तो आपको क्या लगेगा, हम क्या बोलते हैं, वायरल है ठीक हो जाएगा, वायरल है ठीक हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। फिर हम कभी कभी पैरासिटामोल ले लेते हैं, एक मेडिसिन ले लेते हैं, करेक्ट। जनरली आप थोड़ी आज बुखार आया और आप मलेरिया का चेक करवाने चले गए, ऐसा नहीं हो। पर ये बार बार जब रिपीट होता है देन वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीवियर में वॉमिटिंग, कन्वल्यूशन, टेरिबल पेन्स हो सकते हैं। आर्थलैजिया दिख रहा है अभी वर्ड, जॉइंट पेन, नहीं याद है तो डोंट वरी, जस्ट राइट जॉइंट पेन। एनीमिया, malaria affects your RBCs, your RBCs burst, they die, ठीक है, due to rupturing of RBC। RBC कम होगा तो हीमोग्लोबिन डाउन, हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो क्या होता है, एनीमिया, वीकनेस, टायर्डनेस, करेक्ट, ये सब होगा। हीमोग्लोबिनिया मतलब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रहा है और यूरिया यूरिन में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो हीमोग्लोबिन is completely breaking down, your hemoglobin will, कभी कभी मलेरिया में हीमोग्लोबिन आपका 6 पे आ जाता, 6। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना है क्लास, 12 to 14, 14 to 16, यहाँ पे कितने पे आ गया, 6। डू यू थिंक वी कैन इवन गेट अप फ्रॉम बेड एट 6? वी विल बिकम वेरी वीक। हिपैटोमीगैली, हिपैटो मतलब लीवर, मीगैली मतलब स्वेलिंग, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, हिपैटोमीगैली। क्लास ये वर्ड टेक्सुअल है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। एक रेटिनल डैमेज, डैमेज टू आई भी हो सकता है लेकिन ये बहुत सीवियर केसेस में, जैसे हमने कहा फेल्सीफेरम में, ठीक है। सेरिब्रल इन्फेक्शन, अभी अभी मैंने बोला था ना ब्रेन को फीवर आ सकता है, करेक्ट। सेरिब्रल मलेरिया कौन सा था वो, फेल्सीफेरम। सो गिव मी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, एक सिंपल बिना देखे आप बोलिए। जॉइंट पेन हो सकता है, हेडेक, ठंडी, कोल्ड, फीवर, स्वेटिंग, यस। ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी से क्या होगा, एनीमिया, यस, ड्राई कॉफ हो सकता है, करेक्ट। सो दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। क्लास ये जो इमेज है ये टेक्सुअल नहीं है, ठीक है, दिस इज जस्ट टू शो यू ओवरऑल, and this is textual lines here, and this is just an image from exactly the textual word type किया हुआ fever is shivering, so उसको typically क्या बोलते हैं हम, cold hot, sorry class just a minute, 1 minute, या हमने उसके लिए सिंपल वर्ड क्या ढूंढा, ये इमेज मैंने क्यों डाली है ताकि आपको याद रहे, कोल्ड हॉट स्वेट, हॉट मतलब फीवर, ठीक है, कोल्ड मतलब शिवरिंग, ठीक है। सो रिमेंबर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, इज दैट क्लियर, यस। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, नाउ दिस इज अ बिग साइकिल, 1 मिनट, सो लाइफ साइकिल में आपको I'll tell you later, yeah, okay class, I'm getting back to you, 1 minute. Fine class. Okay, ma'am. कि मॉस्किटो हमको बाइट नहीं करे पर वो ब्रीड एंड हो जाए जरा बहुत मुश्किल है, हाई रिप्रोडक्टिव पावर, वेरी हाई रिप्रोडक्टिव, ओके फाइन क्लास, एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट हियर, आर यू क्लियर? तो आप क्या करेंगे, इम्यूनिटी तक पूरा पढ़ेंगे, वो एक पूरा टॉपिक है, और अभी हम आगे डिजीज, डिजीज जाएगा, ओके, बट इम्यूनिटी पार्ट आपको समझ में आए, सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे, फाइन, थैंक यू सो मच, या थैंक यू सो मच, थैंक यू।